Yes children, so now we are going to study about the combination of errors. Whatever errors we have found just now, absolute error, mean absolute error और percentage error, they could be combined also. कभी कभी एक erroneous value और दूसरी erroneous value could be added, could be subtracted, could be multiplied और could be divided. किसी भी फॉर्म में हमें एरर मिल सकती है, राइट. सो नाउ वी विल लर्न हाउ टू कंबाइन. इस वैल्यू में भी एरर है, इस वैल्यू में भी एरर है. व्हाट विल हैपन व्हेन दे विल बी एडेड. ये वैल्यू में एरर है, ये वैल्यू में. व्हाट विल हैपन व्हेन दे विल बी मल्टीप्लाइड. दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ errors, right? So for this we will assume that there are two values. Say let us name them as A and B. Right, first I'll tell you about addition. There is a value A और A में कितना एरर है, डेल्टा A, and there is a value B और B में कितना एरर है, डेल्टा B. Right? Now suppose I have to calculate Z which is equals to A plus B. Earlier the proof of these derivations were there in your syllabus, but now only direct result is there. Now the proof is not there, so we have to learn only the direct result and we have to apply that result in our numericals. So कोई value Z है and Z is equals to A plus B, लेकिन A में इतना error है, B में भी इतना error है, right? So we can write this as A plus delta A plus B plus delta B because both are having errors. Then A plus B plus minus, this is plus minus and plus minus here, plus minus, right? Plus minus delta A plus delta B. This is the answer of Z plus minus delta Z, right? Now what has happened? Suppose two values are added. So we will take those two values and add both of them. What will be the error in them? The error in them will also be added. Error भी क्या हो जाएगी? Add हो जाएगी. And this gives us the error in the value of Z. So what is the error in the value of Z? Error in the value of Z is plus minus error in A plus error in B. तो मेन वैल्यूज अलग ऐड होंगी और एरर्स अलग से ऐड हो जाएंगी. Is that clear? Error in A is plus minus A, delta A. Error in B is plus minus delta B. Suppose we have to calculate the addition of A and B. Now when we are adding A and B, तो A को हम ऐसे लिखेंगे, B को ऐसे लिखेंगे. A और B main values will be added separately and error का value will be added separately. So what is this? This was Z. And what is this? This tells us about error in Z. हमने कैलकुलेट करके दोनों का एडिशन कर लिया, लेकिन एरर्स का क्या होगा? एरर्स को हम सेपरेटली ऐड करेंगे और सेपरेटली ही लिखेंगे. When you will solve the question, you will understand better. तो ये क्या है? अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो इसमें एरर कितना होगा? उतना ही एरर होगा जितना A का एरर था और B का एरर था और दोनों को ऐड करने पे जो एरर आया था. So that will be the error in the final answer. I hope this is clear. Yes. No, it tells us that delta Z is what? It is the error. Once you will solve the numericals, you will get to know. Error में the error in A and error in B will be added, and this is the main value, and plus minus represent this is the error value. Plus minus का यहाँ पे ये मतलब नहीं कि हमने कॉमन ले लिया. No, not like maths. कॉमन नहीं लिया है हमने A के एरर को और B के एरर को ऐड कर दिया. और प्लस माइनस का मतलब ये एरर है. प्लस माइनस बाहर लगने का मतलब दिस रिप्रेजेंट्स अ एरर. For example, suppose I am talking about subtraction now, right? I am talking about subtraction. Two values are getting subtracted. A में error है plus minus A, B में error है plus minus B. I have to find Z which is equal to the subtraction of both, right? Z is equals to A minus B. It means A का value
माइनस बी का वैल्यू, राइट, ए का वैल्यू मेन माइनस बी का वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. So this is z plus minus delta z. So what is the difference? There is no difference. Difference is only that कि z का वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन एरर वही रहा है. अगर दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो एरर्स ऐड होंगे, अगर दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो भी एरर्स क्या होंगे, ऐड होंगे. इज दैट क्लियर? मेन वैल्यू वहां पे a प्लस बी था, मेन वैल्यू यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, बिकॉज दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट. लेकिन जब हम एरर लिखेंगे वहां पे तो एरर्स विल ऑलवेज बी एडेड, वेदर इट इज एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज और इट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, राइट. वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड. क्लियर दैट? नाउ सिमिलरली प्रोडक्ट एंड क्वोशंट. यस यस, Z is any quantity that represents the addition or subtraction of two different quantities. एडिशन में प्लस रहेगा, सब्ट्रैक्शन में माइनस रहेगा. अभी क्या रहेगा, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो Z क्या हो जाएगा, AB, राइट. नाउ एरर इन Z, our aim is to find error in Z every time. Error in Z upon Z will be plus minus error in A divided by A plus error in B divided by B. This is our formula. As I told you earlier, the proof was in the syllabus. Now you have to learn it directly. How to find error in Z? Z is equals to A multiply B. So error in Z is given by एरर इन z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. तो डेल्टा z कैसे निकलेगा, ये वाला z यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इज दैट क्लियर? व्हेन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, एरर इन a डिवाइडेड बाई a प्लस एरर इन b डिवाइडेड बाई b, पूरा सॉल्व कर लिया. ये वाले z जो कि ab के बराबर है, वी विल टेक इट राइट हैंड साइड एंड दैट इज हाउ वी फाइंड द एरर इन z or z, whatever you pronounce. Now Z is equals to A upon B. If Z is equals to the quotient of two things, then error in Z divided by Z will be plus minus delta A upon A plus delta B upon B. This is the formula for quotient. What is the difference? This formula and this formula, there is no difference. बट द आंसर वुड बी डिफरेंट. हाउ? यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे एरर इन ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एरर इन बी डिवाइडेड बाई बी, राइट, ये हम यहां से लेंगे. ये z राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमें एरर इन z मिलेगा. ये z कितना है, AB. इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, AB. तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा और ये z जब यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, दीज टू कैन बी कैंसल्ड आउट इजिली. But that is not the case in this, where z is equals to a by b. Error in a upon a plus error in b upon b. इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एरर क्या आएगा, एलसीएम ए बी. लेकिन ये z जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरर इन z, दैट इज डेल्टा z. सो ये z जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इस z का वैल्यू क्या होगा, a बाई बी, जो कि कैंसिल नहीं होगा इस वैल्यू से. यहाँ पे कैंसिलेशन होके इजिली यू गेट द आंसर. क्वोशंट में इट इज अ लेंथियर कैलकुलेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. प्रोसीडिंग. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नाउ देयर आर टू वैल्यूज विच आर इन एक्सपोनेंशियल, कुछ पावर है. जैसे हमने कहा z का वैल्यू है a रेज टू पावर m, b रेज टू पावर n अपॉन c रेज टू पावर mn, इसको x बोल देते हैं, x. हाउ टू फाइंड एरर इन z, कितना z में एरर होगा. नाउ लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I hope this is visible. Yes, this is very very important. Delta z by z is calculated by the formula. ये पावर शुरू में आ जाएगी, m डेल्टा a by a प्लस n डेल्टा b by b प्लस, look at this plus x delta c by c. This is very very important. अभी अगर हम एक्सपोनेंशियल
की बात करें, मैथ्स में क्या होता है, ये पावर ऊपर आती है तो ये क्या हो जाती है माइनस, लेकिन जब हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी देयर इज अ प्लस माइनस ऑल्सो, इसके बाहर क्या है, प्लस माइनस भी है. यस, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरर, पावर इन मल्टीप्लाई एरर इन ए अपॉन ए प्लस पावर इन मल्टीप्लाई एरर इन बी अपॉन बी प्लस, दिस इज प्लस एंड नॉट माइनस की सी की पावर माइनस एक्स हो गई, नो, एरर्स विल ऑलवेज बी एडेड, तो ये भी क्या होगा प्लस इसका पावर डेल्टा सी बाय सी, एंड दैट इज हाउ वी सॉल्व आवर न्यूमेरिकल्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, क्वोशंट एंड एक्सपोनेंट्स. Yes.